Good morning, everybody. Today we are going to start our poem that is Church Going by Philip Larkin. And as we are studying the modern literature that shows the pessimistic nature of the poets, that at that time, what they were going through and they were suffering from the feeling and the phase of negativity. Okay, so this poem, Church Going, was written in 1954, right? It's a monologue. Okay, and what is a monologue? Where the speaker is seeing something and he is expressing his ideas. Okay, now the speaker here discusses about the futility and the utility of going to a church. Okay, at those times, like when the war was there, and after the war, the people, they left and they were going less to these churches. Their presence, their attendance was less in the beginning. Okay, so Philip Larkin, as a contemporary poet, he says after this World War II, he says that the influence of the people's belief was shattered at that time. Okay, and there were constant social changes. So he noticed that we can see as the title of the poem as has having two possible meanings. Okay, the first meaning, as we can say, that was the weekly act of going to a church, that we are having a very normal routine, regular routine, that yes, we are going to our temples, we are going to our churches for the prayers to ask something from the gods. Okay, and the second is something which is very different, that is the people are losing interest going to the church. Okay, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो कवि था वो ये सोचता था कि लोगों की जो एक धारणा है वो जो है मंदिरों में और जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं यहाँ पर जाने की जो है ये स्थिति कम हो गई थी. ठीक है, सो ही टॉक्स अबाउट द स्पीकर्स थॉट, सो दिस पोएम इज जस्ट ऑल अबाउट द थॉट्स ऑफ द स्पीकर एज ही एंटर्स अ वेरी वास्ट एंड एम्प्टी चर्च. ठीक है, वो ऐसे ही किसी एक चर्च में जाता है, खाली है जो है. ठीक है, और वो इधर उधर घूमता है और वो ये देखता है कि चर्च जो है वो पहले की तरह गुलजार नहीं है. ठीक है, सो इट बिकम्स एन इंक्वायरी कि भाई धर्म के प्रति लोगों की आस्था जो है वो ख़त्म क्यों हो रही थी. He sees the mats on the floor, the seats, number of Bibles, flowers which had been placed inside on last Sunday, कि पिछले संडे को जैसे लोग आए होंगे तो वही वाले फूल जो है वो पड़े हुए थे. और वो देखता है वहाँ पर एक जो लैंटर्न है वो वहाँ पर पड़ी हुई है. एंड ही गोज थ्रू अ फ्यू वर्सेज इन अ बाइबल. ठीक है, फिर वो बाइबल को खोलता है और वो देखता है कि उसमें कुछ पंक्तियाँ जो हैं वो लिखी हुई हैं. राइट, सो देन ही गोज बैक टू द एंट्रेंस. वो वापस जाता है, साइंस द बुक, क्योंकि जब जाते हैं कि कौन कौन व्यक्ति वहाँ आया. ड्रॉप्स एन आयरिश 6 pence इनटू द चैरिटी बॉक्स. वो वहाँ पर एक जो है सिक्का डालता है जैसे कि हम दान डालते हैं. एंड देन ही कम्स आउट. ओके, सो इट सीम्स टू हिम दैट इट वाज लाइक नथिंग कमिंग टू द चर्च. ही थिंक्स दैट अबाउट दोज पीपल हु कम टू द चर्च फॉर डिफरेंट पर्पसेस. कोई बच्चा मांगने आ रहा है, कोई कहता है मेरी शादी हो जाए, कोई कहता है कि मुझे ज़िंदगी में दुख जो है वो ख़त्म हो जाए. ठीक है, सो ही सेज दैट दी importance was lesser at that time. ठीक है, and the people were not coming to the churches in routine, in normal life. So he says that a time is coming when people would stop going to churches ऑल टुगेदर. ठीक है, वो कहता है कि कभी ना कभी तो ऐसा समय ज़रूर आएगा, मुझे लगता है कि लोग मंदिरों में जाना ही बंद कर देंगे. जब अभी स्थिति इतनी कम है, भाई लोग आते ही कम हैं, उस समय तो कोई आएगा ही नहीं. दे वुड हैव लॉस्ट देयर फेथ इन गॉड. क्योंकि जो युद्ध का जो समय था, जो आफ्टर World War II की जो स्थिति चल रही थी वो इतनी बुरी थी कि लोगों की, जब लोगों ने ह्यूमैनिटी को ही छोड़ दिया तो लोग किस तरीके से अपनी आस्था को बचाए रखते. सो पीपल हैव स्टॉप बिलीविंग दैट देयर इज सम व्हाट गॉड. Okay, so the time will definitely come when people's disbelief in God and their superstitions will come to an end too, कि उनके जो superstitions हैं वो भी कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे. So eventually some people might still visit the decayed places, the disused church buildings. ठीक है, so that is they are losing some type of wisdoms because there were many graves in the churchyards after the this World War II. The people have they have slaughtered, they have gone for mass slaughters. ठीक है, कि इकट्ठे लोगों को मारा गया एक साथ खड़े होकर. Lots of things were happening at that time. So he says that was a if
दे आर गोइंग टू कम टू द चर्च ओनली व्हेन देयर विल बी अ कंपल्शन। अगर वहाँ पर कुछ कंपल्शन होगी तभी कोई ना कोई जाएगा। और अंदर अगर हमारे स्पिरिचुअल जो बिलीफ है, ठीक है, जो धार्मिक जिसको हम विश्वास कहते हैं, वट एवर द थिंग्स वी आर हैविंग, द बिलीफ मस्ट बी स्ट्रॉन्ग दैट येस देयर इज गॉड। ओके, सो दैट इज the having that type of view that churches have very little role to play in the lives of people. Spiritual significance of the churches will never die। ठीक है, आज की जो आस्था है, जिस चीज़ को लेकर हम चलते हैं कि भगवान है, विश्वास है, आस्था है हमारी, मंदिरों में हम जाते हैं, चर्चेज में हम जाते हैं, दैट इज़ बिकॉज वी बिलीव। ओके, तो यही चीज़ कहता है कि ये चीज़ लोगों को अपने अंदर समझनी पड़ेगी। दे मस्ट हैव दैट टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट येस 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 गॉड इज देयर, जस्ट ओनली देन द चर्चेज विल गेट इनटू बैक। ठीक है, तो वो जो लाइवली जो चीज़ें हैं जो पहले मिलती थी चर्चेज में, लोग बैठते थे, प्रेयर्स बोलते थे, सुनते थे, वो वहाँ पर उनको समझ आती है। ठीक है, सो नाउ व्हाट टाइप ऑफ राइम एंड फॉर्म इज देयर। ओके, सो दिस poem is the form of the poem is that it is set in a very conversational tone of the speaker। ठीक है, कि मैं किसी को देखते हुए जो वो बात कर रहा हूँ, there is a good deal of iambic pentameter, रेगुलर राइम स्कीम जो है वो वहाँ पर है। और राइम स्कीम क्या है, जो सही चलती है, 1 by 1 है। ठीक है, जैसे ए बी सी ए डी सी डी। ठीक है, तो ये जो पोएम है ये 9 स्टैंजास की जो 9 लाइन्स की जो एक एक पैराग्राफ है। ठीक है, तो ये जितनी भी जो राइम स्कीम है ये किस तरीके से बनी हुई, जैसे जो पहली पोएम का पहला अक्षर है, लास्ट पहला, तीसरा और छठा, तो ये राइम स्कीम बनती है। ठीक है, तो ए बी। ठीक है, अगर आप इसको धीरे से समझेंगे तो। ठीक है, नाउ व्हाट एग्जैक्टली द टाइटल वांट्स टू एक्सप्रेस, है ना। अब जैसे पोएम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं उसमें टाइटल्स दिए हुए हैं, वी आर हैविंग दीज टाइप्स ऑफ टाइटल्स, कि मैंने आपको पहले भी कहा था ना, द स्ट्रक्चर ऑफ द पोइट्री, द स्ट्रक्चर ऑफ एनी पोएम इज डेवलप्ड थ्रू वट एवर वी सी नियर बाय आवर ओन सराउंडिंग्स, राइट। सो इट सीम्स वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइटल है, भाई हम चर्च जा रहे हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल, इट रेफर्स टू द वे द रेगुलर गोइंग टू द चर्चेस। ठीक है, एंड वी आर हैविंग आवर फोकस ऑन द चर्च गोअर्स, जो चर्च जाते हैं, टू अटेंड द मास प्रेयर्स एवरी वीक, है ना, कि हमारा जो फोकस है उस भीड़ को केंद्रित था जब लोग एक साथ जाया करते थे। ठीक है, सो फॉर द स्पीकर ऑफ दिस पोएम नाउ चर्च गोइंग हैज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ मीनिंग्स। काफ़ी सारे वो हैं, एक जगह वो कहता है कि ऑफिशियल टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियनिटी है, लेकिन वो उस पर भी फोकस नहीं करता। ही रेफर्स टू द वे दैट ही कंटिन्यूज टू रिटर्न, कि वो आएगा। ठीक है, और वो देखना चाहता है उसी चीज़ को, उसी समय को। सो द डबल मीनिंग ऑफ चर्च गोइंग हाईलाइट्स द टेंशन। ठीक है, टेंशन ऑफ World War II, द ट्रेडिशनल रिलीजियस मीनिंग्स एंड स्पीकर्स पर्सनल रिलेशनशिप टू द चर्च। ठीक है, वो अपना देखता है कि एक आम व्यक्ति की सोच क्या है, और एक वो भीड़ को केंद्रित होकर उस कविता को लिखने की कोशिश करता है। ठीक है, सो if we see this poem on another level, we find some things that the speaker of this poem spends much of his time wandering here and there, that what will happen to the churches if the religion is going to be just like vanish from the earth, कि अगर पृथ्वी से वो उठ ही गया तो क्या होगा ज़िंदगी में, लोग कहाँ जाएंगे, किसके आगे वो अपने दुखों को कहेंगे। ठीक है, सो दिस इज that is, so the title is very appropriate। okay, sometimes we find it very puzzling, कि यहाँ पर पजल भी है एक तरीके से, कि क्या मैं रिलीजन को फोकस करूँ या मैं लोगों को फोकस करूँ। ठीक है, सो द लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल, वेरी लूसिड। ठीक है, सो ही एडवाइसेस नॉट टू डिसीव बाय द इल्यूजन्स। वो कहता है कि यहाँ पर आपको देखकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, सो ही एंटर्स टू द चर्च, जब वो चर्च के अंदर एंटर करता है एज ए सेप्टिक हु डज नॉट हैव एनी फेथ इन द चर्च, जिसका चर्च में विश्वास नहीं है, बट ही रियलाइजेज द ट्रुथ दैट चर्च ओनली द रिलीजियस प्लेसेस ऑलवेज फुलफिल्स अ डीपली फेल्ट ह्यूमन नीड्स। ठीक है, कि जहाँ पर जो आदमी की जो अंदर की जो आत्मा है उसको शांत कौन करता है, रिलीजियस प्लेस ही करता है। ठीक है, सो ही नोटिसेस द फर्नीचर्स, द फर्निशिंग्स, द प्रेयर बुक्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। ठीक है, ही नोटिसेस दैट रूफ इज ऑलमोस्ट लुकिंग न्यू,
है ना। कई बार क्योंकि जब हम कोई जगह जाते हैं तो हमें कुछ नया लगता है कि कुछ रिफॉर्म्स ही हुई हैं चीज़ें, ठीक है, उनको दोबारा से नया किया गया है, फर्निश किया गया है, राइट। सो ही कैनॉट अवॉइड द चर्च ओवर अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो वो कहता है कि इन चर्चेस को हमें संभालना है, हमें इनको ऐसे ही रखना है जैसे हैं, वी मस्ट कीप देम जस्ट लाइक दिस ओनली, बट समटाइम्स द पीपल मस्ट हैव द स्ट्रॉन्ग फेथ in the church, right? So it will become a deserted place if nobody is going to visit. The church path will be overgrown with grass, weeds, है ना, अगर हम वहाँ पर नहीं जाते हैं। सो द स्पीकर ऑफ द पोएम रिफ्लेक्ट्स, यू नो, दैट इज़ द लास्ट पर्सन, कि वो कौन सा आखिरी व्यक्ति होगा जो चर्च में जाएगा, है ना। So it's a very serious house on a serious earth. Here the church is a symbol of man's sincere search. चर्च जो है वो इस तरीके से एक सिंबल है, एक वस्तु, एक ऐसी जो है वो चिन्ह बना हुआ है जो ये दिखाता है कि आदमी की जो खोज है, जो जहाँ पर जाकर उसको ये पता लगता है कि एक्चुअली जीवन में क्या है, वो वहीं पर जाकर पता चलता है। सो इट एफर्म्स, इट अंडरलाइंस द ट्रूथ दैट द पावर एंड ग्लोरी ऑफ गॉड कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि चाहे ज़िंदगी में कितनी साइंस हो, कितनी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन हम भगवान में जो आस्था है, भगवान का जो विश्वास है, वो हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। और ये रिलीजियस प्लेसेस ही हमें यूनिवर्सल लव प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड अस, दे फोकस ऑन यूनिवर्सल लव, पीस, गिविंग स्पिरिचुअल सोलेस टू मैन्स प्रॉब्लम्स एंड सफरिंग्स इन हिज लाइफ, राइट। कि वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि कभी ना कभी हमें ये पता चले कि हम किस चीज़ की तलाश में हैं और हमें कैसे वो मिल सकती है। सो दीज प्लेसेस गिव अस दैट टाइप ऑफ peace. Okay, go through this poem and I will send you the notes. Make your notes. If you have any query, you can call me. Thank you.